guys, welcome back to Talabari. This is Cami and with me Amar. Today we're giving you a different type of video. We're telling you the experience of Red Lorry Film Festival in Mumbai. It is a bit late, we know, but finally we got the time to make this video for you. We watched 13 movies in total, so we will mix it telling you the experience of how it was, plus the movie's small review, because otherwise it will be too long. The thing here that I want to say is that they sent the schedule super late. It was like the day before they put the schedule, and even when they sent the schedule, in there when the movies were going on, they were changing everything, and then they also had this special screening and they cancelled everything. We regret not going to the Hyderabad one, and we will continue telling you why. Overall, in the first day, the first thing that you do, it is if you have an exclusive pass, then you go and there's like a red carpet type of thing where you go and they have like an open bar. And they also have this thing that they have tables, you sit down, you can talk to celebrities, you can talk with other people. There were not only Indian celebrities, but they also had foreign celebrities in there. Honestly, it was a bit hard in there because if you go to the back part, what was the bar, there were mostly like the celebrities but with their group. It is a bit harder to enter the group कि सब अपने अपने ग्रुप में रहते हैं और उसमें अपन डायरेक्टली बेशरम टाइप से घुस नहीं सकते. वहाँ पे सिंपल है, कोई बात कर रहा है वहाँ पे जाके एक्सक्यूज मी ऐसे ऐसा नहीं बनता, थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करके चलना पड़ता है. तो हाँ, अपना किस्मत अच्छा था, हमको कुछ सेलिब्रिटी मिले, कुछ हमारे बगल में आकर के बैठ गए, तो लकीली हमारा उनसे बात हो गया. उनमें से एक थे राजीव राय सर, मोहरा के डायरेक्टर, उनसे हम बात किए. उनके साथ एक और यंग फिल्म डायरेक्टर थे जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, का नाम था दीपेंद्र वशिष्ठ. उनसे मुलाकात हुआ, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज से हम लोग मिले. और पहला दिन क्या हुआ, पहला दिन हुआ अपना स्पेशल स्क्रीनिंग एक मूवी का जिसका नाम था सितंबर 5. अभी उस मूवी का हम आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देंगे कि The story is very simple. We have ABC, which you already know. It is a news company from the US. They are live streaming the Olympics in Germany. The Olympics in Germany, and in there they're just streaming everything. But in there something big happens that I don't want to give you a spoiler, but there is an issue. Terrorist, you can say it happens. How they struggle to show all that thing to the world. Because that time they didn't have like phones like we have now. They didn't have these wireless cameras or anything. How they did everything is from their perspective as the news anchors. क्या मीडिया वाले उस चीज़ से जब गुजरते हैं तो उनका कैसा रहता है, क्या डिसीजन उनको लेना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, नहीं बोलना पड़ता है. अगर आप म्यूनिक मूवी देखे हो तो आपको ठीक ठाक ही लगेगा, क्योंकि वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था वो मूवी. ये मूवी मेरे को पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी हार्ड हिटिंग है. एंडिंग जो खास करके काफी हार्ड हिटिंग है. मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार तो देखना चाहिए एटलीस्ट आप लोग को. अगर आप लोग को इस टाइप का थ्रिलर मूवी पसंद है, सर थ्रिलर मूवी ओनली, इसमें ऐसा कुछ तो हीरोइन वाला बात नहीं है. इसके अंदर it is more drama. It is like it is showing a real life situation that happened, that it is actually very serious and it is very sad. And another important thing in here is that they show also the perspective not only from the US people, but they also had one French guy, they also had one woman that was German, how she felt, because we already know what happened in World War II. They had a really bad like reputation because of that, and then they were trying to gain it again with this, and then this type of stuff happened. So also the pull and like the push and pull that were happening within them, the politics and all this stuff, we can see in here clearly. ये पहला मूवी था कि अगर अपन बोलने चले गए तो 13 मूवी का 130 मिनट का वीडियो बनाने बैठ जाएंगे हम लोग. यहाँ पे हम लोग आपको छोटा छोटा बताते जाएंगे, बाकी आप लोग जा करके देख सकते हो. पहला मूवी ये था, ये ओपनिंग नाइट का मूवी था. सेकंड डे हम लोग सुबह सुबह गए घातक देखने के लिए, सन्नी देओल का. उसका रिव्यू देने का हम लोग को जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग देख चुके हैं. मेरे को पर्सनली इन महारानी को दिखाना था, इसलिए मैं इनको लेकर के गया वहाँ पर. और वहाँ पे लकीली हमको एक एक्टर दिखे जो मूवी देख रहे थे. उनका नाम मेरे को नहीं पता, बट वो एनिमल में थे. ठीक है, मेरे को नाम नहीं पता उन एक्टर का. बॉबी देओल के छोटे भाई बने थे आई थिंक सो, वो या साइड जो भी थे वो एनिमल में थे. तो वो मूवी हम लोग वहाँ पर देखे. वो मूवी देखने के बाद, और मेन चीज कामी बोलने भूल गई, क्योंकि ये जो इवेंट था ये 2 अलग अलग थिएटर्स में था. एक पीवीआर माइसन में था और एक जियो वर्ल्ड प्लाजा में था जहाँ पे आइनॉक्स है. तो हम लोग को क्या है, एक देख करके उधर जाओ, वहां से देख करके फिर इधर आओ, फिर टैक्सी पकड़ो, फिर उधर जाओ, फिर टैक्सी पकड़ो, फिर इधर आओ. और सबसे बड़ा दिक्कत, हर दिन का शेड्यूल चेंज हो रहा है. मतलब दे डिक्लेयर द शेड्यूल, बट फिर जब वहां पहुंचो, अरे सर वो तो चेंज हो गया है. फिर आप आधे घंटे पहले, फिर आधे घंटे बाद, यही चल रहा. डेली सुबह अपने को आ रहा है मेल. तो वो सब हम लोग उसमें भांग घोसड़े में फंसे हुए थे. पहले दिन हम लोग को क्या किए, पीवीआर में ही हम लोग पूरा दिन गुजार दिए. फर्स्ट डे हम लोग सब देखे. पहला घातक देखे, घातक के बाद हम लोग देखे मूवी लॉक्ड, जो कि इंडिया में रिलीज हो चुका है 21 मार्च को. अगर आप लोग को कैसे कहना चाहिए, सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो आप देख सकते हो. मे भी कई लोग को पसंद ना आए जो उसका एंडिंग है वो. मैं आपको अभी से इसीलिए बता दे रहा हूँ. कुछ लोग बोल सकते हैं अरे क्या एंडिंग दिखा दिया, बट
हम लोग को पर्सनली मूवी अच्छा लगा कि वो बिल स्कार्सगार्ड, उनका एक्टिंग और एंथनी हॉपकिंस भी हैं, कैमियो बोल सकते हो उनका, बहुत छोटा सा रोल है लास्ट में। वो बंदा रहता है, कार चोरी करने के लिए घुसता है, कार के अंदर फंस जाता है, बस वो फंस जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो स्टोरी है। काफी रियलिस्टिक टाइप का है, कुछ ऐसा ओवर द टॉप आपको नहीं लगेगा कि अरे ये कैसे दिखा दिया या ये कैसे हो रहा है, हर एक चीज आप डाइजेस्ट कर सकते हो। Yes, another thing in this movie is that it is super fast paced. It is not like it just lags in there and you feel like, oh, it is getting boring. No, it is super fast. And in my case, I like the ending. It was a very good ending and very satisfying ending, you can say like that. Oh, another thing that we want to add here is that every day they had a special screening. Something that will be surprise and that it should be like an And amazing every time it movie. got cancelled. And every single time we waited for that special screening, and every time, like he said, it get cancelled. And then the last day, they finally held the special screening, and what it was, Hysteria, a movie so old that you can easily find on YouTube. And what is the story of that movie? They invent vibrator. And how it was in Hyderabad, you tell. In Hyderabad, they show Kanappa. स्पेशल प्रीमियर हो गया है भाई पिक्चर का वहां With all the cast. With all the cast and everything, everybody was there in the theater, this प्रसाद IMAX. और हम भेंचो चूतिया टाइप यहाँ पे गए और यहाँ पे हमको क्या देखने मिला, हिस्टीरिया। And paying cap here, there, here. हाँ, ना चले वहाँ पे एटलीस्ट प्रसाद थिएटर में था, शुरू से एंड तक एक ही थिएटर में सब कुछ चला। तो नेक्स्ट ईयर हमारा भी प्लान है कि हम वहाँ पे जाकर के अटेंड करें। यहाँ पर फिर इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर वो कैंसिल हो गया, सो फिर इधर कैंसिल हो गया। भाई जो स्टाफ है ना, बुक माई शो के जो स्टाफ है, उनको खुद को नहीं पता था कि स्पेशल स्क्रीन में क्या दिखाने वाले हैं। उसके साथ सरप्राइज है, सरप्राइज लेने के लिए आओ, बाद में बोलो बाबा जी का ठुल्लू। But they were very good. This time I'll say that Book My Show did a good job. Yes. Usually they do a pathetic job, but this time they did a great They job. do a in here. pathetic job in WWE events. Yes, it They was fuck up always. really bad. I didn't Yes. have any hope, but they were very helpful. They were showing like whatever information they had, they were sharing it with you and trying to help you to find out what you can watch. Yeah. Then we watched one more movie, उसका नाम था कूप। कूप बोले तो COUP. I think With the it same is- hero from the other movie. It That was a British movie, I think so, na? Same hero from September 5. He was there. He was playing a mysterious chef in this movie. Story काफी सिंपल है इस मूवी का। एक शेफ रहता है, थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर रहता है, वो एक फैमिली में आता है। ये मतलब बहुत पुराने जमाने का कहानी था। वो उस फैमिली में आता है कुक बन के, वहाँ पे उनके साथ फिर काफी कुछ हो जाता है। उस कुक के आने के बाद उनका लाइफ ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि के बारे में बता नहीं सकते स्टोरी, क्योंकि फिर वो लिटरली स्पॉइलर हो जाएगा। बट भाई पिक्चर स्लो है। They said it is dark humor, but in reality it didn't have like that type of joke. He basically comes to taunt and to push the staff to go against their owners and that they should be treated the same. You can see the same thing in the trailer. इक्वालिटी वाला बात चल रहा था उधर, Yes. मालिक और नौकर एक साथ। Yes, there's a small plot twist. The way they did it, it is like the most underwhelming plot twist I have seen in my entire life. It could have been good, but no. And even the ending is bad. भाई सो जाओगे, नींद पड़ जाएगा आपका, क्योंकि जो ह्यूमर वाला पार्ट ये लोग बोल रहे हैं, हाँ आएगा आपको कहीं कहीं पे, बट वो इतना स्लो है ना कि वो हंसी कब आएगा कब निकलेगा आपको महसूस ही नहीं होगा उस मूवी में। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मूवी का। रेटिंग वेटिंग हम लोग नहीं देंगे, देखना है देख लेना, नहीं देखना है मत देखना, भी समझ जाओ रेटिंग कैसा है इस पिक्चर का। September 5 नहीं मिस करना है तुमको। Locked is also good. लॉक्ड इज ऑल्सो गुड। उसके बाद अपन क्या देखे, कुप के बाद हम लोग देखे अनोरा। हम लोग देखे अनोरा, जिसको मिला है ऑस्कर। भाई इसको हेट करना है आके कर सकता है नीचे। अग्रीड, 6 मिलियन में पिक्चर बना, कम बजट का मूवी था, मूवी खराब नहीं है। There was line to go inside. It was हाँ. the only movie. और उस मूवी का कई सारा शो रिप्लेस करके अनोरा लगाया वहां पे, क्योंकि ह्यूज डिमांड था। जिस दिन जा रहे हो वहां अनोरा के लिए लाइन लगा हुआ। अभी सिंपल भाई बता रहा हूं मैं, ऑस्कर वर्दी पिक्चर नहीं है वो। Acting, we can say yes. डार्क कॉमेडी मूवी है वो। इट इज अ डार्क कॉमेडी, क्या डार्क ह्यूमर जो बोलते हैं ना, वैसा मूवी है। हंसी आएगा सेकंड हाफ में ही है जो कुछ भी है। फर्स्ट हाफ भाई 1 घंटा पिक्चर में सिर्फ सेक्स, Yes. सिर्फ सेक्स। Yes. जो जहां पारे उठा पटक यही चल रहा है पूरे पिक्चर में। मेरे को ये समझ नहीं, अगर इस चीज को ऑस्कर मिलना है तो उससे अच्छा फिर जाओ भाई नॉटी अमेरिका की वीडियो उठा के दे दो फिर ऑस्कर तुम ना। 1 घंटा भाई सिर्फ सेक्स। ठीक है, समझते हैं कि तुमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, कैरेक्टर का तुमको केमिस्ट्री दिखाना है। भाई केमिस्ट्री दिखाने का भी 100 तरीका होता है। And she's also like kind of stripper slash prostitute. ठीक है, So it is fine like if you show few scenes. 15 मिनट 20 मिनट दिखा दो ना यार। 1 घंटा तक हर 4-10 मतलब 3-4 मिनट निकल रहा है, फिर फट 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 फिर 10 मिनट फिर वही चल रहा है पिक्चर में। अब उसको तुम लोग ऑस्कर के नाम से देखने जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ तुमको मजा लेना है पिक्चर का तो बिल्कुल देखो भाई।
टाइम स्टैम्प मैं भेज दूंगा तुम लोग को, जिसको चाहिए कमेंट मार देना, मैं भेज दूंगा टाइम स्टैम्प तुम लोग को, देख लेना कहाँ कहाँ पे सीन है। स्टोरी सिंपल है, वो एक ट्रिपर कम प्रोस्टिट्यूट रहती है, रशियन गैंग लीडर के बेटे से उसका शादी हो जाता है, फिर उसके गैंग वाले आ जाते हैं, बोलते हैं कि शादी को डिवोर्स में तब्दील करो, खत्म करो इसको, नल एंड वाइड करो, फिर वो लौंडा भाग जाता है। उसके बाद क्या भांग घोसड़ा मस्त है, ये स्टोरी है, मजा बिल्कुल आएगा। सेकंड हाफ में आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, है कॉमेडी मूवी। बट जो ऑस्कर बोलते हैं ना भाई, जो वजन, हाँ जो वजन होता है ना अवार्ड का, कुछ नहीं है दादा। सब्सटेंस इससे लाख गुना अच्छा था, क्योंकि उसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। इसमें चौदन पट्टी चले जा रहे हैं 1 घंटे तक के, तुम उसको बोल रहे हो वहीं तो दे दो अवार्ड, अवार्ड को भी डाल लो अंदर। फिर we're not saying that don't watch the movie, because generally it is enjoyable. We laughed a lot. The acting of every single person was amazing. Still, if you watch like at home, please put headphones. Don't watch with your family. And if you don't like to watch all this time sex scenes, then you can skip that part. But it is fine. सिर्फ सेक्स है भाई, 1 घंटा सेक्स है, सीधा सेकंड हाफ से भी चालू करोगे मूवी तो तुमको चलेगा, ऐसा कुछ समझने का जरूरत नहीं है। दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, यही चल रहा है पूरे पिक्चर में। अभी देख सकते हो तुम्हारे पर, वैसे भी सेक्स वाला मूवी छोड़ता कौन है भेजो। के बाद अनोरा के बाद हम लोग देखे एक मूवी जिसका नाम था 6 Hours। वो आई थिंक सो पॉलिश मूवी था। मैं उस मूवी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू ये कनेक्ट हो गई थी। जो सेकंड हाफ चालू होता है मूवी का, इट इज 1.5 घंटे का पिक्चर है भाई। कनेक्ट एक बार हो गया ना, फिर आपको मजा देगा। एंड जो है वो दिल एकदम बोलते हैं ना, गार्डन गार्डन हो गया, एकदम सेटिस्फाइंग एंडिंग था उसका भाई। शुरू होता है मूवी, एक दिखाता है कि किडनैपर के पकड़ से एक बच्ची भागते हुए आ रही, छोटी सी बच्ची, और वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है, पुलिस वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं, और उसी सब मिश मैश में वो बच्ची मर जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ता है 10 साल आगे, सेम टाइप का किडनैपिंग वहाँ पर भी होता है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सब कुछ सेम रहता है। तो फिर जो बंदा उस टाइम पे पुलिस वाला जो हैंडल कर रहता है उस केस को, तो वो बोलता है कि मैं ही हैंडल करूंगा, बट उसको कोई इज्जत देता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे बच्ची मर चुकी थी। न्यू नया डिटेक्टिव आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, कैसे उस बंदे को फिर से वापस लिया जाता है हेल्प करने के लिए, इसके ऊपर से है। बट इंगेजिंग है मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में, इसके लिए शुरू से था, मेरे लिए सेकंड हाफ था, बट सेटिस्फाइंग मूवी है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। नाम है मूवी का 6 Days। फिर उसके बाद हम लोग एक मूवी देखे रेड रूम्स, में भी बहुत लोगों को पसंद आया है वो मूवी, अवार्ड फंक्शन में भी बहुत अवार्ड जीत चुका है वो। हम लोग के लिए वो टट्टी पिक्चर था। And it wasn't only us. Before you come and just throw stones in the comments, half of the crowd was sleeping because we were checking. Everyone was like with the blanket and everything. They were sleeping. The other part they left in the middle of the movie because what happens? The movie is so slow. And whenever you think it is getting good, like when she is doing the research and everything, you're like, yes, finally, again it goes downhill. और मतलब वो कनेक्शन मेरे को नहीं लगता भाई कि बैठ पाएगा। अगर तुम लोग को एकदम सुपर स्लो मूवी पसंद है, आर्टिस्टिक, हाँ आर्टिस्टिक मूवी पसंद है तुमको, क्योंकि स्टोरी क्या है, एक मॉडल है जो कि फैसिनेट हो गई है एक सीरियल किलर के केस के ऊपर। जो बंदा स्नफ मूवीज बनाता है, लड़की लोग का रेप और मर्डर करके कट करते हुए उन लोग का वीडियो बनाता है, उस केस में वो फैसिनेट हो गई है। अब वो कैसे, वो किलर ऑलरेडी पकड़ा गया है, ठीक है, वो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है, एक ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे बंदी वो ट्रायल अटेंड कर रही है, हर एक ट्रायल वो जा करके अटेंड कर रही है। फिर वो किलर का भी फैन फॉलोइंग है, वो लोग उसको बोले कि वो नहीं, वो इनोसेंट है। अब वो कैसे उस लड़की हर एक चीज़ को अनफोल्ड करती है, कैसे पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में वही बंदा है जो सब कुछ किया हुआ है। स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, बट जब देखने बैठोगे ना तुम लोग सो जाओगे। इसको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, वी रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट हम लोग के लिए वो टट्टी था। मैं जबरदस्ती शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, हम लोग को टट्टी लगा और वो जमा ही नहीं, मतलब किसी भी एंगल से नहीं जमा। हो सकता है कि हम लोग एक दिन में 6 पिक्चर देखे तो वहां पे जा करके हम लोग बोर हो गए। अगर आप स्टैंड अलोन इस मूवी को देखो तो आपको अच्छा लगे। रेड रूम नाम है मूवी का। सेकंड डे फिर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का गांड फट गया 6 पिक्चर देख के, ठीक है, और कुछ खास था नहीं। हम लोग पूरा फर्स्ट हाफ में लिए ब्रेक, सेकंड हाफ में हम लोग पहुंचे डायरेक्ट देखने के लिए। पहले तो एक सेलिब्रिटी से मुलाकात हुआ, मिस्टर नरेंद्र खत्री से, जो कि लापता लेडीज में चटनी मैन का रोल किए थे, उनसे मुलाकात हुआ, काफ़ी सारी बातें हुई। उसके बाद हम लोग देखे स्पेशल स्क्रीनिंग संतोष का। मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इट शोज अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर उन लोग का गांड जल जाएगा, फिर वो ऑफेंड हो जाएंगे, फिर पुलिस केस हो जाएगा, उस टाइप का पिक्चर था वो। तो अगर आपको आर्टिकल 15 का डार्क वर्जन देखना है, सुपर रियलिस्टिक, एकदम रियलिस्टिक वर्जन देखना है, जो आप मे बी डाइजेस्ट ना कर पाओ, कई लोग तो 100% ऑफेंड हो जाएंगे वो देख करके, तो आप संतोष मूवी देखो। क्योंकि जो एंडिंग है उस मूवी का वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, जो कि होता है रियल लाइफ में। आर्टिकल 15 में इन द एंड हैप्पी एंडिंग था,
इधर हैप्पी एंडिंग नहीं है. In here it takes time to digest the ending, and the main thing in here, the advantage in this movie was that the main actress, she came and she explained properly why they did that type of ending, and that is very important in here. Shahana Goswami was there, like after the show ended, they had a Q&A, and then she explained, and then she told everyone that the movie is not going to release here. It is already released in USA and UK, but here because of government and CBFC restrictions, it will not release as usual. Yes. तो वो आप जुगाड़ करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वो. उसके बाद हम लोग एक मूवी देखे जिसका नाम था नाइट साइलेंस. रात को 11:30 बजे देखे. भाई देखो, वो ऐसा मूवी है जो हम दोनों को डिवाइड कर दिया. मेरा कुछ अलग ही थ्योरी चल रहा था माइंड में, इनका कुछ अलग ही थ्योरी चल रहा था. कहानी काफी अलग टाइप का हॉरर मूवी है. वो हॉरर तो मैं नहीं बोलूंगा, इट इज अ फैंटेसी हॉरर मूवी. It is more a bit also suspense. हाँ. You can add in there because they don't show properly everything till Yes. almost the end. यस, स्टोरी ये है कि एक बूढ़ा आदमी है. यूजुअली आप 80 साल के अंकल को हीरो के रूप में नहीं देखते किसी भी हॉरर मूवी में. इसमें ऐसा है, एक 80 साल का बुढ़ा है जिसको उसके बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं. अभी वहां पे बेसमेंट के अंदर कुछ तो है, और एक के बाद एक लोग मरते जा रहे हैं. जब से वो बंदा वहां पर आया है, उसके बाद क्या होता है, क्या चीज है उस बेसमेंट के अंदर, और उसका जो एंडिंग है, खास करके Or जो एंडिंग if है. it is real. हाँ. That is another thing, because you will not be able to understand from the beginning if it is something that is actually happening or he is just imagining. बट एंडिंग में वो लोग क्लियर करेंगे आपको. और मेरा थ्योरी कुछ अलग था एंड में, इनका थ्योरी कुछ अलग था. बट We will not give them. हाँ, वो हम आपको बताएंगे नहीं. बट मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको स्लो बर्न हॉरर पसंद है, एकदम अलग टाइप का मूवी जो सोचने पे आपको मजबूर कर दे, वैसा मूवी एक बार ट्राई आप दे सकते हो. मे बी आपको बहुत बोरिंग लगे क्योंकि है स्लो मूवी, कुछ भी ऐसा नहीं, बस वो बुढ़े लोग आपको दिखते रहेंगे पूरे पिक्चर पर. जो एंडिंग है आखिरी का जो 20 मिनट है, माइंड को पूरा ट्विस्ट कर देगा वहां पर. Yes. Another thing in here is that it is not only the horror part, but the hard-hitting thing. Because if you have your parents, especially if they're getting older, it will make you think of a lot of things. Many parts you will get emotional. That will make you sad because it's not an easy thing to see old people in this type of old age homes and that they are just left in there. So they send 2 messages in here which are very good. I will not tell them. Use your brain. Yes. But overall, it is worth watching if you're into like offbeat movies. वो IMDb में भी नहीं दिखेगा वो. इट इज लाइक सुपर हार्ड टू फाइंड दैट मूवी. वो ढूंढना पड़ेगा फुल जुगाड़ में आपको. उसके बाद चालू होता है तीसरा दिन, जो कि था आखिरी दिन. उस दिन हम लोग गए सुबह देखे हम लोग ऑडिटी, बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ द फेस्ट, बेस्ट हॉरर मूवी ऑफ दिस ईयर दैट वी हैव वॉच्ड टिल नाउ. चूतिया बंदर नहीं, मंकी चंकी नहीं, एक नंबर पिक्चर भाई. आपका दिल खुश हो जाएगा, शुरू से एंड तक आप हुक रहोगे. स्लो नहीं है मूवी, उतना स्लो तो बिल्कुल भी नहीं है. हर हॉरर मूवी में थोड़ा टाइम लेता है पिकअप होने के लिए, बट फ्रॉम द बिगिनिंग वो मूवी आपको हुक करके रखेगा कि चल क्या रहा है. और जो ट्विस्ट है उसका, वो ऐसा शेफ्स किस बोलते हैं ना, And how it ends, that is another thing, because usually in horror they don't know how to close the movie. Yes. In here it is like that it will not go as you expect to happen, but once it happens you will be like, good it happened like that. Maybe you might be confused, so you watch properly from the beginning. You cannot miss. कुछ भी मिस मत करना इसमें. शुरुआत का पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम शुरू होता है मूवी. और जो भी मूवी हम लोग आपको बोल रहे हैं सब 1.5 घंटे का है भाई. कोई लंबा मूवी नहीं, 1.5 घंटे का मूवी आराम से आप लोग को झेला जाएगा. ऑडिटी मतलब द बेस्ट दैट वी वॉच. And there are parts that are scary. हाँ भाई, 3-4 जगह है, गांड फट जाएगा आपका. उसके बाद हम लोग मूवी देखे इनहेरिटेंस. First thing, Bajati happened to us because we were thinking that it is Inheritance, but the horror movie. And then when we went inside and then we discovered it wasn't that movie, we just had to go inside because there was nothing else to watch. और हुआ क्या कि आधे घंटे तक हम लोग बोले कि हाँ ठीक तो लग रहा है, बैठे के निकले. जैसे हम लोग उठने वाले थे, कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग फिर बैठ गए देखने के लिए. अच्छा मूवी चल रहा है, अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया है. एक सिंपल सा कहानी है, इसका भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है. जो पिताजी हैं हीरोइन के, वो है समझ लो स्पाई टाइप के इंसान. अभी उनको किडनैप करके ले जाते हैं टेररिस्ट लोग, और वो लोग डिमांड करते हैं कुछ चीज का. तो उनकी बेटी उस चीज में फंस जाती है. अब उनकी बेटी को अपने पिताजी को बचाना है, के लिए वो जाती है इंडिया में आकर के फिर दिल्ली में उसको इजिप्ट, इंडिया, कोरिया, पूरा दुनिया घूम ली बाली का पिक्चर के अंदर. कोई सिर पैर नहीं है अगर तुम लॉजिक लगाने बैठोगे तो. इतना इजीली वो हर एक जगह पे ट्रैवल करती है ना. With $1,000. $1,000 है भाई उसके पास. फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही है, दूसरे के पासपोर्ट में दूसरे कंट्री निकल जा रही है. अब उसमें ऐसा दिखा इंडिया वाले इतना चूतिया हैं कि वो लोग पासपोर्ट देख के लड़की को पहचान तक नहीं सके.
दूसरे का पासपोर्ट, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर रहती है, एक दूसरी बंदी रेड हेड रहती है वो, and thicker nose. और मोटा नाक, वो देख के कि हाँ मैडम जाओ, आपका तो रोल है. Even in South Korea, like, oh yes, you come, and then she हलवा is है. able to go back with the US passport. फर्स्ट क्लास टिकट में Yes. जाती हो वापस भाई. And US, you know, if you have traveled outside of India or any country, you will know that they always check the stamp that you came inside the country when you came and everything. In there, they didn't even check. They just let her go. It is not like that. It is simply not like that. And everything that she's doing, she's running away from the Interpol. इंटरपोल. They show fine that she runs away from this Indian like police. It can happen, but you're running away from Interpol. तो भाई अगर तुमको बिना सिर पैर वाला थ्रिलर देखना जिसमें मजा आए, आपको मजा आएगा, आपको शुरू से एंड तक आपको मजा आएगा, आपको हुक करके रखेगा पिक्चर, तो आप देख सकते हो. अगर लॉजिक लगाना है तो आप स्किप कर सकते हो. उसके बाद हम लोग क्या देखे, कैरल डोडा. मेरे रिकमेंडेशन पे, इनका मूड नहीं था, इट इज अ बायोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री टाइप का है. कैरल डोडा एक टॉपलेस डांसर. शी वाज द फर्स्ट टॉपलेस डांसर इन यूएस. अभी तुमको अगर डॉक्यूमेंट्री पसंद है किसी लेजेंडरी पर्सन के ऊपर से कि वो कैसे बंदी इतना बड़ा डिसीजन ली कि टॉपलेस डांसर बनी, कैसे वो फेमिनिज्म को ऊपर उठाई, कई सारा वो रियल फेमिनिज्म. हाँ, रियल फेमिनिज्म. ये नहीं कि बस इक्वालिटी के नाम पे चुतियापा मचाते रहो, ऐसा नहीं है वो. तो आप देख सकते हो. मेरे को काफी एंगेजिंग लगा, बहुत ज्यादा अच्छा था. It is a very well made documentary that you will not get bored, because Yes. they also had other people come and tell their stories. And it is not only that she was topless and she was showing everything, but why she took that decision and what were the consequences of taking that decision. Here they show everything that happened in all their lives, like from the beginning till the end, and till the end they reveal like her biggest secrets. Overall, it is super enjoyable, and the main thing about this festival is that every single movie was uncensored. So that was like completely really uncensored, unfiltered version we have watched. तो आप लोग भी देखो कैरल डोडा अगर आपको देखना है तो. हम लोग देखें लास्ट मूवी. अभी हम लोग हैं हॉरर फैन, सबको पता है, अभी तो चैनल में सबको मालूम है, जो हॉरर बहुत देखते हैं हम लोग. इंडोनेशियन हॉरर, और सोने पे सुहागा, और खुश. चलो आखिरी मूवी हॉरर मूवी देखेंगे, मस्त. क्लोजिंग पार्टी छोड़ दिए भाई, हम लोग पूछने भी नहीं गए कि क्लोजिंग पार्टी हो रहा है कि नहीं. तो हम लोग गए हॉरर मूवी देखने जिसका नाम था द ड्राफ्ट, इंडोनेशियन हॉरर. माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, पूरे फेस्ट का सबसे टट्टी पिक्चर था ये. इतना बढ़िया फेस्ट गया, लास्ट में बेंचो लौड़े लग गए. इतना गू मूवी है ना वो बोल सकते हैं कि वो लोग एक चीप कॉपी बनाए कैबिन इन द वुड्स का. एक बहुत ही चीप वर्जन जिसमें कुछ भी नहीं है. आपका सर दुखने लग जाएगा, आप बोलोगे कि अरे क्यों आ गए रे हम लोग देखने के लिए. इसको बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में मतलब टट्टी निकल जाता है. ये वही मूवी था भाई. Yes, they try to make like a satire of horror movies. Like they follow this and then this happens and this happens. It is like that. Basically, I'll spoil it because this movie is not enjoyable. Tatty. Yes. Basically, what happens, it shows the characters of a horror movie. And what happens, it is according to the writer. So whatever the writer will do, it will happen to them. So they can die and then come back. They die and come back and then they defeat and everything by following the rules of what should happen in a horror movie. यही था भाई. Yes, it is just a loop. हाँ, तो कभी भी कहीं पे भी ये मूवी दिखे उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है. मूवी को ही ब्लॉक कर दो, पिक्चर देखने का जरूरत ही नहीं है. आउट ऑफ द बॉक्स देखना है भाई, सिकंदर देख लो जाके, पर ये पिक्चर मत देखना. इसके सामने तो राधे भी बेंचो तो ऑस्कर वर्दी है. इतना वाहियात मूवी है ये, तो बिल्कुल भी नहीं देखना है. इसके बाद हुआ फेस्टिवल खत्म. हम लोग क्लोजिंग पार्टी हुआ नहीं पता, क्योंकि हम लोग चेक करने के लिए गए नहीं. हुआ भी होगा तो छोड़ो बेंचो. अभी नेक्स्ट ईयर जाएंगे हैदराबाद अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहां पे साले कनप्पा दिखा दिया, हम लोग कुछ देख नहीं पाए. हमारा पूरा दिल टूट गया, हमको देखना था. And it is in one venue, because generally you'll spend a lot of money on cabs because they will just rip you apart. आपको अगर एक अलग एक्सपीरियंस लेना है, मूवीज लवर तुम हो, तो बिल्कुल जाओ. मिस मत करो इस फेस्टिवल को जब भी होता है तो, क्योंकि जितना वो लोग चार्ज करते हैं ना भाई, उसमें तुम लोग उसका 10 गुना पिक्चर देख के वहां से निकलते हो. क्योंकि सब रिक्लाइनर सीट, सब वीआईपी सीट, वीआईपी सर्विस, IMAX, सब IMAX पे स्क्रीनिंग हो रहा है. मतलब दिल गार्डन हो जाएगा आपका. और हम लोग तो सबसे हाईएस्ट वाला पास लिए थे. आप लोग सुपर फैन वाला पास भी ले सकते हो. अभी भी ऐसा है कि मूवी फेस्ट खत्म होने के बाद हमको मेल आया कि ये सब मूवीज अभी भी आप मिस किए हो तो आप घर में देख सकते हो स्ट्रीम के द्वारा. or even if you get the time, you can get 1-day pass. That is Yes. another thing that you can do. So overall, it is a very enjoyable experience. We recommend it for you guys if you love movies. ओनली थिंग दैट वी फाइंड सरप्राइजिंग, एक यूट्यूबर नहीं था बहनचोद वहां पे. एक बंदा यूट्यूब कम्युनिटी से हमको दिखाई ही नहीं दिया वहां पर. रिव्यूअर जितने भी हैं एक भी नहीं थे वहां पे. अब
हम लोग को था उम्मीद के एक दो तो दिख ही जाएंगे जो सिनेफाइल बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोग का, तुम लोग को भी पता है, दे कॉल देमसेल्फ सिनेफाइल, उन लोग को बहुत नॉलेज है मतलब सिनेमा के बारे में। झांट कोई नहीं दिखा वहां पर, एक आदमी नहीं था, हम लोग अकेले थे यूट्यूब कम्युनिटी से वहां पर, और एक और बंदा था जिनका एक चैनल है ह्यूमंस ऑफ सिनेमा करके, उनका तो प्रॉपर वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन सब सेलिब्रिटीज के साथ चालू था। बाकी प्रॉपर जो यूट्यूबर कम्युनिटी में जो रिव्यूअर्स है ना, एक जन नहीं था भाई उधर। There were only celebrities, which is more surprising because celebrities went to watch movies Yes. and everything, and they were roaming around with you. Like so many people, we will not give every single name in here, but so many people, they would sit with you, they even talk to you, and they were so polite around you. How आप these people अगर didn't मूवी come? से प्यार करते हो तो आप फेस्टिवल कैसे, वो भी आपके सिटी में हो रहा है भाई। कुछ है जो हॉलीवुड का नहीं देख के हमको पता है तो वो नहीं आएंगे, हमको मालूम है वो बात, बट कुछ तो है ना भाई जो इंग्लिश में देते हैं रिव्यू। But even this, for example, this Amir Khan was there. आमिर खान था भाई उधर, कयामत से कयामत तक दिखाया, उसके बाद वो आकर के डिस्कशन करने के लिए वहां पे आया हुआ था बंदा। आओ ना एटलीस्ट वहां पे, लोगों को बताओ तो कि कम से कम लोग आए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उसका जो बेसिक पास है, 800-900 रुपए का पास है बेंचो, उतना खर्चा नहीं कर सकते क्या आने के लिए? टाइम नहीं रहता भाई, बड़े लोग रहते हैं यूट्यूबर वाले, क्या बोलोगे अभी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, बिंदास जाओ जब भी आपको टाइम मिलता है। नेक्स्ट ईयर आप जरूर अटेंड करो, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, और हम लोग आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या था और क्या नहीं था। 90% हैदराबाद। With that said, thank you so much for watching us. Remember to subscribe, like, and share. See you next time. Bye.